So how I asked you all that how many numbers are there between 0 to 1. You all said ki it is infinite, it is uncountable, we cannot write. Okay, so how to represent them then? Representation कैसे करने का फिर infinite numbers का, uncountable numbers का, since there are infinitely many numbers between 0 and 1. So how to write those numbers then? So that is why we take the help of intervals. है ना? अभी sets में हम क्या लिखते हैं? We just list out, no, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is understood that you know कि what is our next number. Okay. So and there is a gap also, no, 1 और 2 के बीच में gap है, 2 and 3 के बीच में gap है. तो इसको हम सेट में ऐसे लिख सकते हैं. बट 0 से लेकर 1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं और उनके बीच में गैप भी नहीं होता है, गैप भी नहीं है. अगर आप मुझे 0 से 0.001 भी बोलोगे ना तो उसके बीच में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं. सो देयर इज नो गैप बिटवीन एनी टू नंबर्स. तो मतलब ये रिप्रेजेंटेशन तो हम नहीं कर सकते, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हम इनफाइनाइट मेनी नंबर्स को, राइट? तो व्हाट टू डू दैट? That is why we take the help of intervals. That is why we take the help of interval and we write this way. Open interval 0,1 or we take the help of closed interval 0,1 और एक साइड ओपन रखते हैं और एक साइड क्लोज रखते हैं. Correct? No? Okay. So what is the difference between open interval and the closed interval? What is the difference between them? Open interval does not include endpoint. 0, 1 half. Absolutely correct. The open interval does not include extreme points 0 and 1, wherein in closed intervals extreme values are included. Very good, very nice. All right. So and we saw one problem also on this in the next lecture. Like intervals दिए रहेंगे, 2 intervals अगर हमें दिया है तो उसका union कैसे निकालने का, intersection कैसे निकालने का, complement कैसे निकालने का, and everything. Okay. So I'm here taking one more question on these topic. Okay. How to find the intervals, union, intersection, complements of the intervals. All right. So will you all do it on your own first, and then we'll have a discussion on this? How do you want? Will you all do it first? Will you all try on your own first? Okay. ये जो question mark can you all see on your screen? ये जो question mark है ना, ये belongs to का notation है. ये क्या notation? Belongs to का notation. ठीक है? Will you all try on your own at least? Yes, ma'am. Okay, so you all should try on your own first, and then we'll see ki where are you getting stuck, where you're finding difficulty, so that you will also know your area of difficulty, and I will also come to know ki where are you getting stuck, where are you finding the difficulty, and then we will focus more on those areas. All right, so just try on your own first. These are the intervals which are given to you. First of all, let me tell you. First of all, you all tell me कि A क्या दिया हुआ है. What is A? What is our interval A? A कौन सा इंटरवल है हमारा? A हमें दिया हुआ है, it is a set of all real numbers which are lying between -3 to 0. तो ये क्या होगा इंटरवल बताओ? ओपन है या क्लोज इंटरवल है? चलो बताओ क्लोज इंटरवल रहेगा. ठीक है, क्लोज इंटरवल रहेगा, ये तो करेक्ट बताया. और उसके वैल्यूज क्या होंगे, कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वैल्यूज इसके? -3 से 0. -3, तक. करेक्ट. तो -3 से लेकर 0 तक के सारे वैल्यूज ले रहा है, इंक्लूडिंग -3 एंड 0 ऑल्सो. दैट इज व्हाई वी हैव पुट दी क्लोज ब्रैकेट. ये समझा आप सभी को कि क्यों क्लोज ब्रैकेट आया? Yes, ma'am. Because equal to sign था. Okay, very good Satya and other kids who are responding. And now let us talk about the set B. Set B is what? It is a set of all real numbers which are lying between -1 to 2. अभी ये बताओ ओपन इंटरवल होगा कि क्लोज इंटरवल होगा? Open interval. Okay, Nitesh, Pratham and Satya, they all are saying कि it is going to be by open interval. And what will be their extreme points? Include नहीं होगा मैम 1 और -1 और 2. So instead of writing -1, can I write 0,2? No, मैम Close बीच कर में देते लाइन हैं. करता रहेगा नंबर. क्लोज कर देते हैं. क्या हो गया? Yes, इसमें ma'am. प्रॉब्लम क्या है? -1 तो लिख एनी सकते विच वेज इंक्लूडेड नहीं है, तो कैन आई राइट क्लोज्ड इंटरवल 0,2? इज इट फाइन? Yes, ma'am. लिख सकते हैं. यू श्योर लिख सकते हैं नितेश? हाँ मैम. आई जस्ट ड्रॉ इट हियर. तो मेरे जो x का वैल्यू है ना, वो कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं? -1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया.
तो जो मेरा x है ना, it is taking value from -1 to 2 and of course -1 and 2 are not included. Then I told you all कि instead of writing open interval नहीं -1, लिख सकते 2, मैम। can I write this way 0, 2? अभी लिख सकते हैं क्या, बताओ? तो कौन सा वैल्यू रह गया हमारा? ये जो बीच के वाले हैं वो तो रह गए ना, हाँ, तो रह मतलब ये गया। ऐसा नहीं लिख सकते हो आप। आपको क्या करना पड़ेगा? ओपन इंटरवल 1, 2 ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज -1 के आगे का अगर -1 पॉइंट ऐसा भी है ना, तो वो भी इसके अंदर आएगा। सॉरी, ये -1 से छोटा होगा ना, -1 से बड़ा होना चाहिए, है ना। -1.1 क्या हो गया? ये छोटा हो गया ना, तो इससे छोटा हो गया -0.9। तो ये नंबर भी क्या होगा? इसके ये एक्स लेगा, इसके अंदर आएगा, तो ये वैल्यूज भी आनी चाहिए। तो दैट इज व्हाई आई कैन नॉट पुट दैट, सो आई हैव टू राइट -1 कॉमा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस मैम। Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट, नाउ सेट सी कौन सा इंटरवल बना रहा है? ओपन इंटरवल भी है और क्लोज इंटरवल भी है। तो ओपन किस पे है, क्लोज किस पे है? Open 6 पे और closed 8. करेक्ट। हाँ सो इट विल बी, हाँ, सो इट विल बी ओपन एट 6 से लेकर 8 तक है, बट इट विल बी ओपन एट 6 एंड क्लोज एट 8. Okay, so very good. Now can you all find out union, intersection, complement? So I'm giving you all yes 5 मैम। minutes, so I'll just try it on your own and then we'll have a discussion on this. So your time starts now. 9:16 ko we'll get back. Okay. Everyone should try this, huh? Unless you will do, you'll not come to know where are you finding difficulties. Everyone should have their pen and paper with them. I will ask any of the students, and that student has to answer me ki what is the answer of the first question. So everyone has to solve it, and that student, whoever answers it, that student is going to get the marks for the same. And who doesn't answer, that student is going to get 0 marks for the active participation in the class. So be ready with your answers, and I'm going to ask any of the 75 students in my class. Okay, 75 students are there in my class, so I will ask any of one of them. So everyone has to solve these questions. 3 minutes left to everyone.
Okay. Shall we begin, students? Are you all ready with your answers? If any one of you can tell me while listening to me. Okay, 66 students now. There were 75 students in my class. Now 66. मतलब इतना डर गए, left ही हो गए. This is not done, right? Yes, students, are you all ready? Shall I ask any one of you? Okay, roll number 139. Roll number 139. I'll wait for 30 seconds and then you'll be given 0. ये सब मेरे record होता है. Everything has been recorded on this in this one note. 139. Roll number 139. Don't leave, students. Okay, students are leaving. This is not done, kids. Roll number 112. Pratik. 112. Pratik Maurya. Can you listen to me? Pratik. Yes, Ritik, tell me what is the answer of the first question? A union B. Did you get A union B? Roll number 150, Pratham Shetty. Yes, ma'am. Yes, what is the answer of the first question? मैम -3 से लेके 2 तक. -3 से लेकर 2 तक. ओके, ओपन क्लोज क्या लगाओ? For -3 ओपन क्लोज रहेगा और 2 ओपन रहेगा. ओके, कितने लोगों को ये आंसर करेक्ट लग रहा है? A union B, whatever Pratham has answered. Pritesh has raised his hand. Man Divani, okay. Only 2 kids think this is the correct answer. Aditya, Adarsh, okay. Dashrath, Rohan, Satish, Daud. Okay, these kids think this is the correct answer. Siddharth, Shubham. 13 participants agree with him. So yes, Pratim, you get marks. कितना है? 50 मार्क्स. कितने मार्क्स होते हैं आर्टिव पार्टिसिपेशन के? 5. हाँ, अगर तुमने सेकंड क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग किया तो ये -5 हो जाएंगे, तो दैट मींस नलिफाई हो जाएंगे, तो मतलब कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो ऐसा नहीं है कि यू आंसर तो यू गॉट 5 मार्क्स. ओके, तो मतलब देयर विल बी अ चांसेस वेयरइन आई विल बी आस्किंग ऑल क्वेश्चंस. इफ यू डू नॉट रिस्पोंड, -5. ओके, now next, so let me explain this first question. हम बाद Who में did not +5 get? कर सकते हैं उसको, किसको? वो जो -5 होगा. -5 होने के बाद. यस यस, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे आप आंसर करोगे, -5 +5, आंसर किया +5, नहीं आया आंसर किया -5. So that's how you going to be. तो ये जिनको 0 मार्क्स मिले हुए हैं, they also have a chance of responding in the class, so that कि 5 मार्क्स for active participation मिल जाए उन्हें. ठीक है, अदरवाइज ये स्टूडेंट्स का नाम कॉल आउट हो रहा है एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, तो उसके भी 0 मार्क्स होते हैं. इन केस यू डोंट नो, यू जस्ट से इट टू मैम, यू डोंट नो, आई हैव नॉट अंडरस्टूड, instead of just not responding, and then Okay, I come to know that these kids are not responding in the class. So let us understand the first question. I'll be explaining on the first question, which is A union B. Okay, कैसे निकालना है A union B? So first of all, what I had told you all, that draw the number line. Number line से चीजें बहुत ज्यादा clear हो जाती हैं. Okay, so ये हमारा number line है. Okay, so first I'm going to plot my set A. What is my A? -3 to 0. So I just take the numbers 0, 1, 2, and here -1, -2, -3. And ऐसा नहीं कि the numbers थे, the numbers है, okay, which I have not written. जितना required था, only those numbers I have plotted on my number line. Next, let us plot this thing. A is from -3 to 0. ये क्या हो गया मेरा set A. What is
this, students? Please pay attention to those who have not understood, because of which they are leaving the meeting. This should not happen, students. Pay attention. ये सेट ए समझा कैसे प्लॉट के नंबर लाइन पे? Students unmute and say, या फिर Yes, चैट बॉक्स ma'am. में डालो Yes, yes ma'am. no. Yes. तो ये Yes, ma'am. समझा नंबर लाइन पे सेट ए कैसे प्लॉट किया? ओके, वेरी गुड. नाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट आवर सेट बी. सेट बी हमारा क्या है? ओपन इंटरवल -1, 2. ठीक है, ओपन इंटरवल किधर होगा? -1 to 2. ये रहा हमारा -1, ये रहा -1, इस पे ओपन इंटरवल रहेगा एंड 2 रहेगा, 2 ये रहा. ठीक है, सो I'll use different color. I'll use this blue color. So मेरा जो B है, जो मेरा सेट B है, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? यहाँ से यहाँ तक जा रहा है. ये अब बोलोगे मैं ग्रीन कलर कहाँ से आ गया? ये ग्रीन कैसे आ गया बीच में? ये ग्रीन कैसे हो गया स्टूडेंट्स बीच में? Intersection. हाँ, वेरी गुड. ठीक है, तो जो सेट A है वो हमारा कहाँ से कहाँ तक था? -3 to 0. एंड जो सेट B था वो -1 to 2 हो गया. तो जितना भी येलो कलर, मतलब येलो कलर नहीं, मतलब जितना भी कलर्ड एरिया दिख रहा है, डोंट यू थिंक सो सबके सब किधर आएंगे? यूनियन में आएंगे. यूनियन क्या होता है? व्हाट इज आवर यूनियन? द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन ए, द एलिमेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन बी, एज वेल एज द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन बोथ. राइट? नो, ए यूनियन बी में क्या होता है? द एलिमेंट्स आर ईदर प्रेजेंट इन ए और इन बी और कॉमन इन बोथ. तो कहाँ से कहाँ तक आपको लग रहा है कि जो पूरा कलर्ड एरिया वो कहाँ से कहाँ तक का है? बताओ बताओ. This is a set of all real numbers which are either present in A or it is present in B. So बताओ कहाँ से कहाँ तक जाएगा मेरा आंसर? A यूनियन B. में A यूनियन B के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? -3 से तो -3 से, हाँ, -3 से लेकर 2 तक ये पूरा एरिया क्या होगा? इसके अंदर आएगा ना. -3 से लेकर 2 तक पूरा क्या होगा? A यूनियन B के अंदर आएगा. बट -3 क्या रहेगा? इंक्लूडेड रहेगा. एंड और 2 इंक्लूडेड -2 होगा नहीं क्या? होगा. 2 क्यों नहीं होगा? नहीं होगा बिकॉज 2 तो किसी क्योंकि भी मैम एलिमेंट open में ना bracket तो है. करेक्ट. हाँ करेक्ट, मतलब ना तो वो ए में प्रेजेंट है ना तो वो बी में प्रेजेंट है. तो 2 यूनियन में कैसे आएगा? यूनियन में तो वो एलिमेंट आते हैं जो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में कॉमन हो. बट 2 तो कहीं पे भी नहीं है, इसलिए 2 पे क्या रहेगा? ये ओपन रहेगा. नाउ यू गेट इट? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now look at, now looking at Yes, the ma'am. same diagram, looking at the same diagram, can you all tell me कि what will come under A intersection B? -1 0. -1 0. -1 0. अब open बताओ कि bracket क्या होगा. ओपन है क्या क्लोज? -1 ओपन ब्रैकेट होगा -1 open है, 0 close है. और 0 क्लोज रहेगा. क्या 0 दोनों सेट में प्रेजेंट है? A एंड B दोनों में प्रेजेंट है 0? हाँ मैम, Yes. दोनों में प्रेजेंट है. और -1 नहीं है प्रेजेंट मैम. किसमें प्रेजेंट नहीं है? बी में. B में नहीं है. A में तो प्रेजेंट है ना? बट हाँ, A A में में तो प्रेजेंट है. प्रेजेंट है, तो लिख सकते हैं ना अभी क्लोज. हाँ मैम, पर ओपन श्योर नहीं लिख लिखेंगे. सकते हैं. ओपन नहीं, क्लोज डाल सकती हूँ क्या मैं? कैन आई पुट क्लोज ब्रैकेट? नो No, मैम, ma'am. क्यों क्यों? ओपन, क्योंकि मैम बी में प्रेजेंट नहीं है. तो इसलिए नहीं डाल सकते. A इंटरसेक्शन B का मतलब होता है कि दोनों में ही प्रेजेंट होना चाहिए. सिंस माय -1 वाज प्रेजेंट इन A बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन B, तो दोनों का कॉमन एलिमेंट नहीं है -1, तो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू पुट द राउंड ब्रैकेट. वेरी गुड, वेरी स्मार्ट. देखा भी कितने अच्छे से आंसर कर रहे हो आप लोग. तो पहले आंसर करने का ना. और टेल मी A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट. So again draw the Minus number line. infinity. Okay, again draw the number line. नंबर लाइन पे हम प्लॉट कर देते हैं. ए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -3 to 0. ये मेरा सेट ए है, तो ए कॉम्प्लीमेंट किधर आएगा बच्चों? वेयर विल माय ए कॉम्प्लीमेंट? दिस इज माय सेट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट किधर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? सेट ए के एलिमेंट को छोड़कर जो भी बाकी सब जो एलिमेंट्स होंगे वो आएंगे ए कॉम्प्लीमेंट में. तो डोंट यू थिंक सो ये जो एरिया आएगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा? ये जो एरिया होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट का होगा? डू यू ऑल एग्री विथ मी? यस मैम. तो ये मेरा जो सेट है, ये जो ये ब्लू कलर में हाइलाइटेड है वो मेरा एरिया ए है, वो मेरा रीजन ए है. ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि इट इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, है ना? ए के एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर.
तो लेफ्ट वाला पार्ट भी आएगा और राइट पार्ट वाला भी, राइट पार्ट भी आएगा। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट पार्ट बताओ क्या होगा, माइनस लेफ्ट पार्ट इंफिनिटी क्या टू होगा, माइनस बोथ माइनस थ्री 5 डॉट डॉट ओपन डॉट ब्रैकेट दोनों। माइनस इन्फिनिटी टू -3 ओपन ब्रैकेट रहेगा क्या, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम, क्यों क्लोज ब्रैकेट, क्यों नहीं क्लोज ब्रैकेट, -3 नहीं आना -3 चाहिए। ए में इंक्लूडेड है। वेरी गुड, -3 ए में है तो -3 ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा, वेरी स्मार्ट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। देन यूनियन यूनियन 0 ओपन ब्रैकेट 0 और 0 कॉमा Zero open bracket to infinity. और हमेशा हम इन्फिनिटी पे ना ओपन ब्रैकेट ही ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी इज अ वेरी बिग नंबर, वी डोंट नो व्हाट इज दैट नंबर, ओके, दैट इज व्हाई वी हैव एन ओपन ब्रैकेट एट इन्फिनिटी, वी डू नॉट इंक्लूड, अदरवाइज दैट्स नंबर ओनली इज नॉट डिफाइंड। सो उसको इंक्लूड नहीं करने का, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, जो मैंने चीज को कॉम्प्लिकेट करेंगे या फिर अनडिफाइंड करेंगे, नॉट वेल डिफाइंड, तो वो चीजों को इंक्लूड नहीं करने का, ओके। सो वी विल पुट ओपन ब्रैकेट एट दिस, है ना। सब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैम व्हाई वी आर पुटिंग इन्फिनिटी की एंड पे ओपन ब्रैकेट, व्हाई आर वी नॉट पुटिंग क्लोज ब्रैकेट। तो अब बताओ, अभी कोई चीज इंक्लूड करने से अगर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, डिफिकल्टी आती है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, डिफाइंड ही नहीं होता है, तो उन चीजों को हम क्यों इंक्लूड करेंगे। मेक सेंस स्टूडेंट्स, इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? Yes, हेलो, ma'am. यस मैम। does it make sense to you all that infinity को क्यों include नहीं करने का? Because infinity is not defined only, no, it is undefined value, but it's very big. We cannot say no to what is that big number. That is why we have an open bracket at infinity. Now, if you all have understood, tell me B complement क्या होगा? B हमारा क्या है? I just plotted. माइनस What is 1 that से B? 2 तक B हमारा माइनस -1 to 2 है 2 and हाँ और हाँ, तो ये this is my set B. B इंफिनिटी complement किधर होगा? माइनस इन्फिनिटी माइनस Where will my इन्फिनिटी B से com- -1 तक। माइनस 1 to तक minus ओपन one. ब्रैकेट दोनों साइड। -1 पे close bracket आएगा. minus infinity to -1. -1 -1 क्लोज ब्रैकेट -1 इंक्लूड करना है या नहीं करना है? करना है। करेंगे, ठीक है। यूनियन यूनियन विथ 2 2 इंक्लूड से करना लेके है। इन्फिनिटी। 2 पे क्लोज ब्रैकेट रहेगा मैम। ओपन क्लोज, पे 2 पे क्लोज क्लोज close ब्रैकेट, वेरी इधर गुड, हो। ठीक है। कितने अच्छे से आंसर कर रहे हो, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया? ए यूनियन बी हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट हो गया। अभी क्या बोल रहे हैं? ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी निकालना है, ठीक है। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले ए देख लो, ए क्या है, -3 to 0 है, सी क्या है, C to 8 है, ठीक है। तो आई जस्ट राइट ओवर हियर, ए हमारा क्या है, -3 to 0 है, राइट, नो, एंड व्हाट इज सी, 6,8। अब बोल रहा है कि ए यूनियन सी निकालो। ए यूनियन सी क्या होगा बच्चों? लेट अस ड्रॉ द नंबर लाइन। इसमें 6 और 8 भी है ना, तो थोड़ा छोटा छोटा नंबर चल लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आया क्यों मैंने ऐसे लिया? एंड देन -1 -2 -3, ठीक है। अब सेट ए और सेट सी प्लॉट करते हैं, देन हम उसका यूनियन और इंटरसेक्शन देखते हैं, ठीक है। जो मेरा सेट ए है वो कहाँ से कहाँ तक है? सेट ए है मेरा -3 to, -3 से ये 0 क्या हो गया मेरा सेट ए, ठीक है। दिस इज माय सेट ए। नाउ नेक्स्ट हम प्लॉट करते हैं सी। सी हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 6 से 8 तक। 6 6 पे इंक्लूडेड ओपन नहीं है, है। हाँ, ये हो गया सी, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं हम। अब बताओ दोनों का यूनियन क्या होगा बच्चों? व्हाट इज द यूनियन ऑफ द, यूनियन क्या हो जाएगा बच्चों? -3, 0 क्लोज -3 ब्रैकेट में यूनियन 6,8। वेरी नाइस, वेरी नाइस, यही होगा, यही होगा, ओके। ये जो व्हाट इज ए यूनियन सी? इट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द एलिमेंट ऑफ सेट सी एंड द एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन इन देम। तो सेट ए ही अलग है, सी सेट सी ही अलग है, तो सबके एलिमेंट्स आप ए और सी दोनों के एलिमेंट्स इंक्लूड कर दोगे, तो ये दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट दिस, वेरी गुड। एनीथिंग कॉमन इन देम? व्हाट इज कॉमन ए इंटरसेक्शन सी?
No, क्या nothing. इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? Null set. नथिंग इज नहीं है। कॉमन से क्या हो जाएगा? एम्प्टी Nothing. सेट आ जाएगा। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। नाउ नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? तो हमारा ये दोनों क्वेश्चन भी हो गया, डी और ई भी हो गया। अब बोल रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है? कैन एनीवन टेल मी कि क्या कॉमन आएगा? चलो इसका नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिख देती हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? -∞ to -3 यूनियन विद 0, ये मेरा ए है। ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा? -∞ to 1 इंक्लूडेड है एंड दिस इज। विदाउट मी एक्सप्लेनिंग कैन यू ऑल टेल मी कि इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इंटरसेक्शन ही निकालना है ना, सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों निकालना है। सो विदाउट मी एक्सप्लेनिंग कैन यू ऑल टेल मी इसका यूनियन क्या होगा और इंटरसेक्शन क्या होगा? चलो नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इधर ड्रॉ करते, बड़ा है ना। सो क्या है हमारा? नंबर्स प्लॉट कर देते हैं हम। ये क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, -1, -2, -3। ठीक है, पहले ए कॉम्प्लीमेंट प्लॉट करते हैं। विल यू ऑल डू इट और मैं करूं? चलो ए कॉम्प्लीमेंट बताओ कहां से कहां तक जा रहा है? -∞ to -3, मतलब ये पूरा पोर्शन ना। यस और नो? Yes, ma'am. एंड 0 to ∞, तो ये इधर से लेकर इधर तक का पूरा पोर्शन। तो जस्ट हाईलाइट इट। सो ये मेरा क्या हो गया? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस? एनी क्वेरी इन दिस? सो दिस No, इज माय ma'am. ए कॉम्प्लीमेंट। No, ma'am. ओके, नेक्स्ट ये ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट प्लॉट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट कहां से कहां तक जाएगा? -∞ to 1 जा रहा है, मतलब -∞ to 1, ये हो गया ना, करेक्ट? एंड देन 2 to ∞, 2 इंक्लूडेड है, 2 to ∞ जा रहा है। सो आई जस्ट हाईलाइट इट विद द ब्लू कलर। सो ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो रहा है? पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो रहा है मेरा? बी कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। सब मुझे बताओगे कि यूनियन क्या आएगा? Who can tell me what will be union? -∞ to +∞. Oof, you sure -∞ to +∞ will be my union? हाँ मैम, Look at the यूनियन भी जो diagram आएगा carefully. वो स्प्लिट में आएगा। मतलब अपने को दो आंसर मिलेंगे, फिर वापस एक वो करके जो इंटरसेक्शन आएगा इसका स्प्लिट में आएगा जैसे उत्तर। मतलब प्रोबेबली 4 वैल्यूज आएंगे। यूनियन, you just think, no, जहाँ यूनियन मतलब क्या? जो भी मेरा कलर्ड वाला पार्ट होगा सबका सब यूनियन में आएगा। तो कलर्ड वाला पार्ट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है? -∞ to 1. पूरा कलर्ड एरिया देखो। अभी ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है, इधर इधर दिख रहा है ग्रीन कलर, इधर आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है? इंटरसेक्टिंग पार्ट हो रहे हैं ना। अदरवाइज जो भी बाकी सारे एरिया है वो क्या है? या तो ए कॉम्प्लीमेंट के एरिया है या तो बी कॉम्प्लीमेंट के एरिया है। तो सारे के सारे यूनियन में आएंगे ना। मेक सेंस? तो जितना भी कलर्ड वाला एरिया है सबके सब उसके अंदर आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा? -∞ to ∞ तक जाएगा। तो ये पूरा का पूरा नंबर लाइन क्या हो रहा है? इंक्लूड हो रहा है। क्या मैं गलत बता रही हूँ? क्या आपको समझ में आ रहा है ये स्टूडेंट्स? ये पूरा का पूरा कलर्ड एरिया हमारा क्या होगा? यूनियन के अंदर आएगा। यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो earlier you all said it right, -∞ to ∞. Now intersecting आपको कहाँ कहाँ दिख रहा है? इंटरसेक्टिंग तीन पार्ट में दिख रहा है ना इंटरसेक्शन। पहला पार्ट कहाँ से कहाँ कॉमन दिख रहा है आपको? -∞ to 3, 3 इंक्लूडेड होगा कि क्लोज होगा? -3 होगा, सॉरी 3 इंक्लूडेड होगा कि क्लोज? Close. हाँ, क्लोज कैसे रहेगा? -3 तो इसमें Open, इंक्लूडेड sorry, ही नहीं ma'am. है, तो ओपन रहेगा। यूनियन विथ, फिर इधर आपको दिख रहा है 0, 1. 0 to 1 कॉमन हो गया। अभी 0, 1 दोनों इंक्लूडेड है या नहीं इंक्लूडेड है? कौन इंक्लूडेड रहेगा? इंक्लूडेड कौन है? 0 इंक्लूडेड है क्या?
जीरो तो एक कॉम्प्लीमेंट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो जीरो तो इंक्लूडेड नहीं रहेगा। वन इंक्लूडेड रहेगा क्या? देखो जरा, वन इसमें भी प्रेजेंट है, वन इसमें भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों में प्रेजेंट है ना वन, तो इस वन पे क्लोज रहेगा यूनियन विथ। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, टू टू इंफिनिटी जा रहा है। अब टू क्या रहेगा, ओपन रहेगा कि क्लोज रहेगा? क्लोज रहेगा। क्यों? बिकॉज टू इसमें भी दिख रहा है आपको प्रेजेंट है, टू इसमें भी है, और इसका इंटरसेक्शन लेना, तो ये हो जाएगा। दिस इज द आंसर। ओके, डिड यू गेट दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है ना, अभी तो हमारे ये क्वेश्चन का आंसर मैम होता है। हाँ बोलो। मैम बी कॉम्प्लीमेंट में -1 है, हमने 1 लिखा है। बी कॉम्प्लीमेंट में माइनस अच्छा इन्फिनिटी टू -1 तक। -1 है। बहुत जल्दी बताया आप मुझे। हाँ -1, बहुत जल्दी बताया आपने मुझे। ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा मैं नहीं करने वाला। अभी आप मुझे बताओ कि क्या लिखो आपने। अरे मैम क्वेश्चन ही चेंज कर लो, जस्ट इमेजिन क्वेश्चन चेंज हो गया। हाँ हाँ हाँ, अभी क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी ये आप करोगे, ठीक है? आप मुझे बताओगे कि आंसर क्या आएगा। चलो यू ऑल डू इट। तो इधर हमारा जो है अभी ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट मैंने इधर लिखा है। आप मुझे बताओगे कि यूनियन क्या आएगा, इंटरसेक्शन क्या आएगा। विल यू ऑल डू इट नाउ? आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किया तो आपको आना चाहिए। यू ऑल सेड इट कि यू हैव अंडरस्टूड, नो? नाउ यू शुड बी एबल टू आंसर। सो ये -1 टू -infinity टू -1 है। करो जरा ये क्वेश्चन और मुझे बताओ कि क्या आपको यूनियन और क्या इंटरसेक्शन आ रहा है। कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? 2 मिनट आपके पास, ठीक है, टू आंसर मी दिस क्वेश्चन। What is the answer of A complement union with B complement? Yes, students. Did anyone get the answer for this? -infinity to -1 union 0 to infinity. You -1 included है या closed है? इंक्लूडेड Open है। है ma'am, -infinity. ये यूनियन का आंसर बता रहे थे ना आप मुझे। So I'll just write down this. क्लोज्ड है। Closed आएगा, ठीक है। ये यूनियन का आप बता रहे हो ना, ठीक है? यूनियन का बता रहे हो, Yes. करेक्ट? ठीक है, और फिर यूनियन एक सेकेंड है, ये मैं एक कॉम्प्लीमेंट जरा हाईलाइट करो। -infinity टू -3 है, ओपन है, तो इसके ओपन रखा है। ये हो गया मेरा ए कॉम्प्लीमेंट। दिस इज माय ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? जस्ट राइट डाउन ए कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट अभी हाईलाइट करते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट मेरा कहाँ से कहाँ तक हो रहा है बी कॉम्प्लीमेंट? इट इज -infinity टू -1 और ये -1 पे क्लोज्ड है। सॉरी, -1 पे क्लोज्ड है। देन
2 to infinity. 2 to infinity. Okay, so I'll just use this color. यस, ठीक है. अब बताओ आंसर क्या हो रहा है. बताओ बताओ. आगे आगे क्या बोला आपने? यूनियन विथ 0 to infinity. 0 to infinity. कौन 0 इंक्लूडेड है या क्लोज है? नहीं, अनइंक्लूडेड नहीं है, Open आएगा. है या नहीं? ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल. Correct. Absolutely right. 10 on 10. And A complement intersection B complement. Infinity to -3. Infinity Minus to minus infinity 3. to ओपन क्लोज भी बोलने का बच्चों. ओपन Open है दोनों Open. साइड. Okay. Then यूनियन Zero 2 to- कॉमा इंफिनिटी 2 के Union minus union with 0 2 to पे infinity. कॉमा इंफिनिटी 0 to infinity जाएगा. करेक्ट. ओपन रहेगा, क्लोज रहेगा, क्या रहेगा? Open है. ओपन रहेगा बिकॉज 0 तो 0 ओपन. एक सेट में प्रेजेंट है इसलिए. एब्सोल्युटली करेक्ट. The question which is left is what? A intersection B का कॉम्प्लीमेंट निकाला है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकाला है. सो A यूनियन B अगर ये है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बताओ? इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा? ये जो पूरा एक कलर्ड रीजन है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये वाला. नल सेट हो नहीं, मतलब नहीं, सॉरी, इसका नल सेट. कॉम्प्लीमेंट मतलब किधर ये लाई सेट करेगा? नहीं होगा उसमें, उसके कॉम्प्लीमेंट बाहर, किधर लाई? हाँ, इसके तो ये बाहर वाला दोनों साइड. हाँ, ये जो पिंक कलर रीजन है वो कॉम्प्लीमेंट होगा ना. सो बताओ क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी टू माइनस 3. ओपन या क्लोज्ड? ओपन Open. ओपन. यूनियन विथ 2 to 2 infinity. कॉमा क्लोज्ड इंफिनिटी टू प्लस ओपन वेरी इंफिनिटी. करेक्ट. सिमिलरली आपको इंटरसेक्शन बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है. इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? -1 closed bracket. Union. आगे यूनियन यूनियन 0 to to infinity 0 पे ओपन. वेरी गुड, वेरी गुड. सी कितने स्मार्टली आप लोगों ने आंसर किया. आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल. ओके, सो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यू ऑल कैन प्रैक्टिस. आई थिंक दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई हैड गिवन फॉर होमवर्क. So that's it for the day, students.